Hi everyone, am I audible? I'm Yes, sir. audible to all? Okay. Yes, sir. All right. So we have done few problems in equations, in implementing the equations of motion, and we have also seen the ways to derive equations of motion, right? Yes, sir. All right. So the derivation is done. I hope you all would remember the derivation because that is what we require in our classes more. So basically there were three equations that we learned. One v equals u plus at, and then 2as equals v square minus u square, and then s equals ut plus half at square. Also there were one more equation, s equals to u plus v by 2 into t. So these four equations, we did problems based on this, depending on what all quantities were given and what all quantities were required. So we will do few questions and check the implementation of these. But before that, have you done the modules? Have you all gone through the modular questions? Any doubt in that? No, sir. Okay, so complete module is done then. Okay, let us. Yes, sir. All right. So in advanced question, Sivans, what page number, what doubt you have? You can let me know the page number. Question 4 in DPP 5. Okay. तो ये DPP का डिस्कशन बाकी है. Okay. So we'll do only questions today. We'll complete all remaining discussions, everything. Then we can start off with new thing in the next class. Okay, question 4 in DPP 5. This one, right? Yes. So it says the numerical ratio of displacement to distance for a moving object. Numerical ratio of distance to displacement. See, there can be situation when distance is equal to displacement. Okay, DPP 5, right. One by one, we will go through. Question 4 in DPP 5. Okay. Let me know this question, right? Sir, I have doubted question 3, 4, 5 of PPP 4. Okay. One by one, we'll do. First, let us quickly complete this question. Okay. So it says here a ball is dropped vertically from a height h above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to height h by 2. Neglecting the subsequent motion
and air resistance, its velocity varies with height h as. So you have to draw the graph of velocity versus height h. So first, the condition is ball is dropped from height h. So its height will progressively decrease. And how its value is going to depend? So if it is dropped, so initial velocity is 0. Now we will find out the displacement. So let us say when it travels displacement s, at this point its velocity is v. That means these can be related using v square minus u square is equal to 2g times s. Let's see. Yes, who was that? Okay, so v square minus u square is equal to 2gs. Let us take this as y. We will get the complete idea in terms of equation. Let us say after traveling y displacement down, so this is its velocity equation. So we get v square is equal to 2gy while coming downwards. Okay, while it goes up, what happens in this case? It hits the ground and it rises till point h by 2, right? So it must start with y equal to 0 and it should go till h, right? So first y will be 0, you can see here, and then y will increase till h, and then while going up, what will happen? Y will decrease now from h to h by 2, right? So first of all, this equation is going to be parabolic. We will remember one thing, that any equation that we have, if the powers of x and y, whatever drawing we are doing, if that is not 1, then that is a parabolic curve. It is in fact a curve. So here c will be ruled off because it's not a curve. So what will be the right fit here? Which graph will be correct? You can see why this is the point of projection. This is the point of projection. That means this is the origin. So y value, if you observe, this y value, it should be negative, right? It increases from 0 to h in the negative direction, and so the value of v. So you can see this option, this fits the first, right? It shows the height decreasing. If you talk about v, here the height is decreasing. In all the cases, height is positive. So is it possible that height is positive in both the cases? That's not right. Because in one case, what will happen? Its displacement will increase in the negative direction, and then in another case, its displacement will increase in the positive direction. So in both the cases, the velocity is different. In one case, you can see velocity is upward, so it should be positive. In other case, velocity is downward, so it should be negative. So definitely this graph and this graph is not right, because in both of them, it is either positive in both case or negative in both case. So here A should be the right fit. Is this understood how we got A? सभी को समझ में आया ये?
The very first thing that we discussed in this question is that graph cannot be a straight line. The first thing that we discussed, Shivansh. Before heading on to discuss all these things, we discussed why the graph cannot be a straight line. You can see here, it will be a parabolic because their variation is not 1. If I want to draw a graph between x and y, if their powers are only 1, then only it will be a straight line. In other case, so you can see here I am drawing graph between v and h. So basically between v and y I am tracking. So the power of v is 2 and y is 1. Now this is not 1 and 1. It will be a curve. That's the thing we need to remember. Okay. Okay, next out in DPP4 3 4 5. Okay, a ball is projected upwards from the ground. It is observed from a 73.5 meter high window. Okay, let us draw the scenario. So it says ball is projected upwards. नीचे से ball upward की तरफ project हुआ, and then it is observed from 73.5 meter high window twice at the interval of 2 seconds. Okay, so let us say it is observed from, let's say this is the building, and it is observed from 73.5 meter high window twice at the interval of 2 seconds. अब इसको लिखा है कि बॉल को जो फेंका, it is observed from this window twice, means in one way it is going up and it is also coming down in the other case, right? A ball ऊपर जा रहा है और ऊपर से फिर रिटर्न हो रहा है बॉल. Okay, so now you have to find the velocity of projection of the ball, मतलब u निकालना है. The maximum height attained by the ball above the ground. Okay, maximum height you have to find, and then total time of flight. What is total time of flight? The total time that the ball is in air. Okay, so ये हाइट है, इस हाइट से हमने बॉल को 2 बार देखा एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स. मतलब इनिशियली अगर हम देखें इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से, तो बॉल ऊपर जा रहा था, और एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स द बॉल इज कमिंग डाउन. अच्छा, ये हाइट कितना है? 73.5 मीटर्स. So here if we apply h is equal to ut plus half at square, so using that we can find out the initial velocity of projection. V equals u minus gt. बट टाइम कितना लेंगे हम ऊपर जाने के लिए? 1, राइट. ओके, चलेगा, ये भी कर सकते हैं. यहां से
यहाँ तक आने में 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट जाने में 1 सेकेंड लगेंगे। तो 1 सेकेंड में इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी था? अच्छा, अगर v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर v तो 0 होगा, दैट्स राइट, इस पॉइंट पे, एंड u माइनस 10 टी, चलो 9.8 टी, तो t तो हमारा हो जाएगा u बाई 9.8। तो u क्या लोगे फिर यहाँ पर, अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे? यहाँ तो दो वेरिएबल अननोन है। कैन वी फाइंड आउट दिस t फ्रॉम दिस इक्वेशन? कैन वी फाइंड आउट? यस वी कैन फाइंड। t को 1 देना है ना, यहाँ से यहाँ तक गया तो t कितना हो गया, टाइम 1 सेकेंड हो गया, बट इससे u जो निकलेगा that u will be the velocity at this point, and the question says you have to find the velocity of projection of the ball। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर वेलोसिटी मिल गया, क्या मिला वेलोसिटी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, हमें ये वेलोसिटी ढूंढना है। सो वी आर गोइंग टू यूज नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर कितना होगा, अब ये बन जाएगा v 9.8 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। सो 2 इंटू 9.8 इंटू 73.5, ये समझ में आया? फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। Rohan, what thing you want me to repeat? Let me know what doubt you have. What doubt you have? Let me know that specifically. About the part to find time, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, इट क्रॉसेस, जो पर्सन है 73.5 मीटर हाई विंडो पे, इट इज ऑब्जर्विंग द बॉल ट्वाइस एट द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड के गैप में कोई पर्सन अगर इस हाइट पे है तो वहां से ये बॉल को 2 बार देख रहा है, तो 2 बार कैसे देखेगा? वन व्हेन इट इज गोइंग अप एंड देन अदर व्हेन इट इज कमिंग डाउन। तो 2 सेकेंड लग रहा है, मतलब कि यहाँ से ऊपर जाने में 1 सेकेंड लग रहा है। वी विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि ये 1 सेकेंड लग रहा है। तो ये टाइम मिल गया, हमें टाइम मिल गया, तो हम v इक्वल्स यू माइन यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे t is 1 second, just now we talked, t is 1 second, just now we discussed, तेजस। यहाँ पर t 1 सेकेंड रखेंगे ना, तो u मिल जाएगा हमें 9.8 सेकेंड्स। So using this, let us calculate the result कि कितना मिल रहा है। You all have the answers of this? Okay.
Okay, let me calculate. Yes, Shivansh, I am going as per you only, whatever you said, and I am calculating the result and I am comparing. We will see the complete way to do this. अच्छा, इसी वे से किए तो यू क्या मिल रहा है तुम्हें? 19.6। कैसे मिल रहा है 19.6? यहाँ तो नेगेटिव रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। 2 इंटू 9.8 इंटू 73.5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1440.6, और 9.8 स्क्वायर इफ यू डू इट विल बी 96.04। ओके जी, वही नेगेटिव तो लिया, ये नेगेटिव तो लिया भाई जी, ये नेगेटिव लिया ना जी, तभी तो u प्लस 80 में u माइनस 9.80 आया है ना। तो इससे तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। लेट अस लुक एट इट मोर क्लियरली। ओके, आई विल डू माय वे, यू ऑल कैन फॉलो इट अप। तो पहले मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आई जस्ट टेक इट हियर। तो यहां पर दिक्कत क्या हो रहा है कि दिया हुआ है कि 2 सेकंड के टाइम गैप में हम बॉल को देख रहे हैं इस विंडो से, राइट? दैट मीन्स इन 1 सेकेंड, सो इफ वी ऑब्जर्व द बॉल एट t सेकेंड मान लिया, तो t प्लस 2 सेकेंड्स में हो सकता है कि हम बॉल को फिर से देखें। दैट इज द सिचुएशन। तो इसमें हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगा देंगे, कंसिडरिंग कि u हमारा वेलोसिटी है ऑन द ग्राउंड, राइट? u हमारा वेलोसिटी है ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से what is this one? She wants, we should not multiply by 73.5 because we are finding for the distance above it for 2 seconds। वही है यहाँ पर, जैसे 73.5 मीटर से हमने देखा, तो लेट अस से t सेकंड्स में यहाँ से बॉल ऊपर गया, तो t प्लस 2 सेकंड्स में हम फिर देखेंगे कि बॉल नीचे आएगा। मतलब इन दोनों टाइम पे हम अप्लाई करेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज 73.5। यस, इन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये कह रहे हो s इज नॉट 73.5, राइट? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि हमारा यहाँ पर s क्या है, बिकॉज वी आर फर्स्ट फाइंडिंग आउट
इस पॉइंट पे v हमने लिया, लेट अस सपोज हम अपर मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो अपर मोशन में ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है 0। Yes, Raghavi, you do not know what is G here. Have you been attending all the sessions for motion chapter? G is the acceleration due to gravity. It has given you here G is equal to 9.8. ओके यस, तो हमने दो मोशन कंसीडर किया था यहाँ पर। एक तो मोशन जब ये बॉल ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो हमने निकाला यहाँ से, ये रहा बॉल, यहाँ से जब ऊपर जा रहा है हमने बॉल के स्पीड को लिया था u, जो कि हमारा मिला 9.8। एंड अब हम कंसीडर करेंगे 73.5 मीटर गैप और हमें निकालना है u। सो in this case why can't we apply this equation? यहाँ पर तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं v, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ तो इसको कंसीडर कर रहे हैं हम। यस शिवांश, यू सेड हियर 73.5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ना, वी आर कंसीडरिंग दिस एज फाइनल वेलोसिटी, दिस एज इनिशियल वेलोसिटी, दिस एज डिस्प्लेसमेंट। ओके यस, सो वी विल कंटिन्यू हियर। तो t सेकंड में हमने देखा कि बॉल ऊपर जा रहा है और t+2 सेकंड में बॉल क्या होगा, नीचे आएगा। सो लेट अस जस्ट कनेक्ट ऑल द वेरिएबल्स एंड वी विल गेट ऑल द रिजल्ट्स एट वंस। तो पहला जो इक्वेशन आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक आने में t सेकंड लगा, राइट? तब फिर यहां से यहां तक घूम के आने में t+2 सेकंड्स लगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस 4.9 t स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, t+2 टाइम पे देखेंगे। अच्छा, ये जो टाइम है t एंड t+2, ये इसका रूट्स होगा, राइट? इसका रूट्स होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम के दो वैल्यू आएंगे, t और t+2। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 4.9 t स्क्वायर माइनस ut प्लस 73.5 इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स आए, एक तो t आए, एक तो t+2 आए, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गिवन इन द सिचुएशन। तो अब इन दोनों रूट्स का अगर सम लिया हमने, सम ऑफ बोथ दीज रूट्स t+2, तो ये क्या आना चाहिए, माइनस b/a पॉलिनोमियल से, तो ये होगा u/4.9। ये एक इक्वेशन हुआ। और दूसरा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें यही इक्वेशन का प्रोटोटाइप मिल जाएगा। अच्छा, दोनों रूट्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, we used here sum of roots, right? and we will use product of roots पहले। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में t इंटू t+2, ये क्या मिला, c/a 73.5/4.9। ये समझ में आए दो इक्वेशन कैसे आए?
अब इनको अगर हम सॉल्व कर देंगे बस, तो हमें मिल जाएगा u, विच इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हमें मिल जाएगा t। t अगर मिला तो t क्या है? t इज द टाइम टेकन टू गो अप। तो जो t यहां से सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, t को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा हमें ऑप्शन सी का आंसर। और अगर t मिल गया तो वी कैन इजिली फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो लेट अस इम्प्रोवाइज। ये तो एक अलग तरीका था करने का, जिससे कि सारी चीज एक ही साथ मिल जाते। एंड लेट अस बी बैक हियर। तो यहां तक समझ में आया ये इक्वेशन तक? क्या गलती है इसमें? एक्सीलरेशन का गलती है, जो कि होगा 2 इंटू -9.8, क्योंकि बॉल अभी ऊपर जा रहा है, राइट। तो अब देखोगे तो हमें यहां से u की वैल्यू मिल जाएगी। इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? 9.8 into 9.8, and then here we are going to add, and then if we take the root of 1536, तो हमें मिलेगा 39.19। so that will be your answer approximately। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 39.2। ये समझ में आया? everyone got this result? 39.2 meter per second we are getting here। अब एक बार अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिला तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी, राइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए चलो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी पता है ना हमें, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमें पता है। क्या है वेलोसिटी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऊपर पे वेलोसिटी क्या है? 0। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया? s इज इक्वल टू u इंटू टी, 9.8 इंटू टी माइनस हाफ a टी स्क्वायर। ये हो गया 9.8 माइनस 4.9, आंसर इज 4.9। तो 4.9 ये मिला। तो हमारा मैक्सिमम हाइट कितना होगा? 73.5 प्लस 4.9, 78.4। एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस यू कैन गेट। u जो हमारा निकला 39.2, इससे भी निकाल सकते हैं। v माइनस u 9.8 माइनस u दैट इज 39.2 इज इक्वल टू 80। a क्या है हमारा? 9.8 एंड t। तो यहाँ से t निकल जाएगा और उसको इंटू 2 कर देंगे, तो कितना होगा हमारा? अच्छा, इसमें ऐड भी करेंगे ना, t 1 ऐड भी तो करेंगे, यहाँ से यहाँ भी तो 1 सेकेंड ले रहा है, और हम तो निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम। सो हाउ मच वी विल गेट? 9.8 minus 39.2 and we divide it by minus 9.8, so we get 3 seconds। 3 सेकेंड में ये 73.5 मीटर जाता है, फिर 1 सेकेंड में ऊपर जाता है, तो टोटल हो गए 4 सेकेंड्स में, जबकि ये ऊपर जाता है। तो टोटल टाइम जब ये ऊपर जाता है और वापस आता है, दैट इज 8 सेकेंड्स। ये समझ में आया? दिस इज प्रीटी इजी रेदर देन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जो हमने पहले देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में। Is this understood to all? Those who didn't understand, they will raise their hand. कहाँ पर दिक्कत है? They will let me know. Tejas, yes. Where is the doubt? Let me know that doubt. Yes, Tejas. Where you have the doubt?
I don't think so anyone has doubt. Okay. Other question where you all have the doubt? In DPP2 क्वेश्चन 7 देखो, आज हम DPP डिस्कशन कंप्लीट कर देंगे, सो जो भी डाउट्स हैं यू ऑल शुड लेट मी नो. ओके, DPP2 क्वेश्चन नंबर 7. ये रहा क्वेश्चन, देखो. अ बॉडी फॉलिंग freely from rest has a velocity v after if it falls through a height h. बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट मतलब किसी पॉइंट से बॉडी फॉल हो रहा है और वहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसका 0. इट हैज वेलोसिटी v, तो किसी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इज v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू अ हाइट h. मतलब h डिस्टेंस फॉल होने पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है. Distance it has to fall further for its velocity to become double. What will be that distance? So let us say इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 2v. तो ये डिस्टेंस क्या होगा और उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. डिस्टेंस इट हैज टू फॉल फर्दर मतलब कि ये डिस्टेंस वी विल कैलकुलेट. दैट डिस्टेंस इट हैज टू फॉल फर्दर सो दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल. तो पहले यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं और एक रिलेशन यहाँ देखते हैं. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड लेट अस से द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल इज x. ओके, एंड वी विल फाइंड s. सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा g इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए x, एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. u क्या हो जाएगा यहाँ पर v. तो यहाँ पर x हमें क्या मिला 3v स्क्वायर बाय 2g. ओके, 3v स्क्वायर बाय 2g. अब ऐसे आंसर्स तो है नहीं, v में तो आंसर है नहीं. आंसर किन में है h में. देखो v में भी हो सकता था बट h में अगर दिया है मतलब कि हम h वाले कंडीशन को यूज करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, और अगर डिस्प्लेसमेंट h है तो उसको रिलेट करते हैं. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s. तो 2 इंटू जी इंटू एच. तो यहां से हम देखेंगे कि v स्क्वायर बाय 2g का वैल्यू आ रहा है h, राइट. तो ये v स्क्वायर बाय 2g के वैल्यू को h से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू एच एज द आंसर. ओके ओके, नेक्स्ट वन डाउट दैट आई कैन सी. ध्यान से देखो कहीं कुछ मिस्टेक है या फिर क्लियर है. क्लियरली वॉच इट. द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन. अच्छा, ये ध्यान देंगे the distance it has to fall further for its velocity to become
डबल, मतलब कि इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछी गई है, राइट? दैट्स व्हाई वी गॉट 3h। ओके, अगर क्वेश्चन रहता डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल, तो क्या होता? जो आंसर रहता उसमें हम ये ऐड कर देते। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं। द सिचुएशन इज वेरी सिंपल। एक तो हमने इनको रिलेट्स किया और ये इक्वेशन मिला। अब देखा कि वी स्क्वायर ये कहीं इन्वॉल्व नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन इन्वॉल्व्स इन टर्म्स ऑफ एच। तो इसलिए हमने इस फर्स्ट सिचुएशन को एनालाइज किया, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो सबको रिलेट करेंगे। तो वी स्क्वायर के टर्म्स में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इस वी स्क्वायर बाय 2g के जगह क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3h। Okay, next DPP 5, question 5 to 10. Let us see this. So, Shivansh, this is your doubt, half of the DPP. So, you let me know इस इनमें क्या डाउट्स हैं एग्जैक्टली पूरे क्वेश्चन को शुरू से करना या किस पार्ट में डाउट है? यू सेड 5 to 10, तो किस पार्ट में डाउट है? 5 and 10 यू सेड, और 5 to 10? क्योंकि यहाँ से यहाँ तो ऑलमोस्ट सारा डीपीपी आ गया। आर यू देयर शिवांश? Yes. What doubt you have actually, let me know. सब में है तो you can say we will do it one by one. In all of them you have the doubt? Six, seven, eight. ठीक है, एक बार देखते हैं। 6, 7, 8, this one, right? Yes. Which of the following graph probably shows the velocity plotted against time graph for a body whose acceleration time graph is shown? अच्छा, ये acceleration time graph है, इसके रेस्पेक्ट में you have to get velocity time graph। तो ये देखो, यहां से यहां तक के टाइम के लिए यहां से यहां तक के टाइम के लिए एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, राइट? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्सीलरेशन, लेट अस से इसको हमने t1 ले लिया, इसको t2 ले लिया, और यही ग्राफ बनाते हैं। ये तो ये गलत है, v होना चाहिए यहाँ पर, राइट? बिकॉज वी आर प्लॉटिंग v वर्सेस t। सो 0 से t1 तक के लिए हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए? तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, राइट? एक्सीलरेशन वो भी कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होती है तो हमें हमारा क्या होता है? वेलोसिटी दैट इज इंक्रीजिंग। तो वेरी सिंपल, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है 0 से t1 के लिए। t1 से t2 देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक्सीलरेशन 0 है, राइट? ये देखो t1 t2 पे एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 है। तो जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
तो T1 T2 तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आफ्टर दैट फिर से देखो एक्सीलरेशन का फिर से वही ट्रेंड जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक फिर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। सो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ये समझ में आया? नंबर 7, ये रहा नंबर 7। अब क्या दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। यू हैव टू ड्रॉ इट्स करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये देखो पिछले क्वेश्चन में एक्सीलरेशन जब पॉजिटिव था या कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट था, तो उसमें v जो हम निकालते थे तो इक्वेशन से ही पता करते थे ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। एक्सीलरेशन अब पॉजिटिव कांस्टेंट है तो v हो जाएगा, लेट अस सपोज एक्सीलरेशन +2 है तो u प्लस 2t। और हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे v वर्सेस t, तो हमने क्या देखा है, एक पॉइंट याद क्या करना है कि ग्राफ में अगर पावर जो ड्रॉ कर रहे हैं उनका अगर पावर 1 है तो ही स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो कर्व्ड होगा। ओके, तो दिस थिंग वी विल कीप दैट इन माइंड। सो लेट अस सपोज इसको फिर से मैंने t1 लिया, तो डिस्प्लेसमेंट जब ड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम 0 टू t1, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट इज वेरिएबल, राइट। वेलोसिटी इज वेरिएबल। अब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इससे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। और वेलोसिटी देखें तो ये पॉजिटिव है 0 से t1 टाइम तक, राइट। हम t1 तक ही देख रहे हैं, t1 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमारा दो ग्राफ हो सकता है कर्व 0 से t1 तक। एक तो कर्व हो सकता है ऐसे चला जाए और दूसरा कर्व हो सकता है कि ऐसे चला जाए, राइट। तो कौन सा सही होगा? विच वन विल बी राइट? लेट अस सी दैट। दो टेंजेंट देखते हैं, किसी दो पॉइंट पे दो टेंजेंट देखते हैं। यहाँ पे एक देख लिया टेंजेंट, एक यहाँ पे देख लिया। अब ये हम बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो पहले रेड कर्व में देखें तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट। स्लोप इज डिक्रीजिंग। नाउ व्हाट इज स्लोप रिप्रेजेंटिंग? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। बट 0 से t1 देखो तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? नहीं। तो मतलब हमारा जो ग्राफ है, जो करेक्ट है, वो ये ब्लू वाला ग्राफ सही है। ओके, इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई टाइम पे, दो टाइम पे स्लोप ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ये स्लोप हो गया, यहाँ पर ये स्लोप हो गया। तो देखो टाइम इंक्रीज होने पे मतलब टाइम जब बढ़ रहा है तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव हियर। तो हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कर्व हो गया, तो चलो हमने दे दिया आंसर डी, इसी में है जो ऐसा कर्व है। ये क्लियर है सभी को? क्वेश्चन 5, मास इज गिवन, हाउ टू रिलेट इट विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन में मास कहीं होते हैं? नहीं होते हैं। तो अगर नहीं होते हैं तो ये सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। There is no involvement of mass in the equation of motion. Two bodies of masses m1 and m2 are dropped from height. The ratio of time taken by them is 1:1. क्या टाइम टेकन मास पे डिपेंड करता है? ये हमने डिस्कस किया था ना, क्योंकि हम जो कंसिडर कर रहे हैं केसेस वहां पे एयर रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है, मतलब वी विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स डू नंबर 8।
what it says, 3 speed time graphs are shown below. ये 3 speed time graph है. Which graph represents the case of a ball thrown vertically upward? देखो बॉल को vertically upward फेंका and returning to the hand of the thrower, और ऐसे रिटर्न हो रहा है, राइट? मतलब पहले बॉल ऊपर गया और फिर बॉल नीचे आया, और ड्रॉ कर रहे हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ. मतलब स्पीड पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट? तो स्पीड डिक्रीज कहाँ हो रहा है? स्पीड डिक्रीज इसमें हो रहा है, राइट? ये देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्पीड देखो डिक्रीज हो रहा है. यू कैन ऑल्सो सी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ये कोऑर्डिनेट ले लिए, लेट अस सपोज 1 सेकेंड पे, फिर 2 सेकेंड के बाद कुछ टाइम बाद कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो स्पीड का कोऑर्डिनेट कम दिखेगा. अच्छा, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, मतलब ये ग्राफ इसका अपोजिट होगा. तो which graph represents the case of ball thrown up and returning to the hand of the thrower? ये होगा फिगर 1. Which graph represents a body decelerating to a constant speed? Decelerating to a constant speed and accelerating. Deceleration हो रहा है मतलब उसकी स्पीड घट रही है, और घट के कहाँ आ जा रहा है, टू अ कांस्टेंट स्पीड. पहले स्पीड घट रहा है और फिर ये कांस्टेंट स्पीड पे आ रहा है. कांस्टेंट स्पीड भी तो है, फर्स्ट में तो बस घट के 0 हो रहा है और फिर बढ़ रहा है. कांस्टेंट स्पीड तो कहीं नहीं है. बट फिगर 3 इसमें देखें तो पहले हमारा घट रहा है, फिर कांस्टेंट स्पीड हो रहा है, देखो कुछ टाइम के लिए स्पीड कांस्टेंट है और फिर एक्सीलरेट कर रहा है, राइट? सो फिगर 1 एंड फिगर 3. और कोई डाउट है डीपीपी में किन्हीं को? डीपीपी 2 क्वेश्चन 10. Yes, Rohan. Let us do DPP 2 question 10. The velocity time graph of a body falling from rest under gravity and rebounding from a solid surface is represented by. देखो सेम केस है, थोड़ा सा अलग है. उसमें क्या किया हमने, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था. कब? जबकि बॉल नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है. इस केस में क्या हो रहा है, हमने कहीं से बॉल को छोड़ा, ड्रॉप किया. इट सेज बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, राइट? इट्स गोइंग डाउन. अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना है, वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम जब ले रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव होगा. तो जनरली अपर डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं जनरल टर्म्स में. तो जब नीचे आ रहा है मोशन, तो पहले केस में बॉल क्या हो रहा है, इट इज कमिंग डाउन, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, एंड देन वेलोसिटी इज अगेन डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग जीरो इन द सेकेंड केस. तो पहले केस में क्या हो रहा है, इन केस 1 वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है मतलब कि जैसे इनिशियली इसका 0 मीटर पर सेकेंड है, फिर कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, -1 होगा, राइट? माइनस जस्ट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ऐसा नहीं है. अगर मैं पूछा विच वेलोसिटी इज ग्रेटर, 1 मीटर पर सेकेंड और -1 मीटर पर सेकेंड, और इफ आई से विच, let us say this is body A, this is the velocity of body B. If I ask which body is moving faster, so both are moving at equal speed. प्लस और माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा है हमें. 1 मीटर पर सेकेंड और -1 मीटर पर सेकेंड, और इफ आई से विच, लेट अस से दिस इज बॉडी ए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी. इफ आई आस्क विच बॉडी इज मूविंग फास्टर, so both are moving at equal speed.
तो जब बॉल नीचे आ रहा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। फिर -2 हो गया, लेट सपोज ऐसे करके, लेट अस सपोज -10 तक आ गया। अब केस 2 में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से बॉल ऊपर जा रहा है, मतलब अब 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल 9 आएगा, फिर हो सकता है 2 आ जाए और फिर स्टॉप हो जाए। सो दिस विल गिव अस द आइडिया अबाउट द ग्राफ। पहले क्या हो रहा है, देखो किस केस में वेलोसिटी हमारा डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है in the opposite direction, and then it should decrease in the opposite direction. So that will be the correct graph. तो क्या ये डी करेक्ट होगा, नहीं होगा करेक्ट, क्योंकि इसमें देखो वेलोसिटी तो हर जगह पे पॉजिटिव ही है, ये भी नहीं होगा, राइट। क्या ये करेक्ट होगा, ए नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ तो वेलोसिटी देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस टू 0। सी विल बी द राइट आंसर। ये ध्यान देना है कि इस कन्वेंशन के हिसाब से क्या सी पॉसिबल है, नहीं। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लें हमेशा और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लें। हम ऊपर के डायरेक्शन को भी नेगेटिव ले सकते हैं, तो नीचे का डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अगर ऊपर का डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं, तो पहले जब बॉल नीचे आ रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, and then velocity is decreasing in the negative direction. तो ये देखो C fits the most. Clear to all? और कोई doubts हैं? You can let me know. We'll go through those doubts because today we should finish up all the DPPs. या फिर अभी करना बाकी है, you all have to attempt it, then we will discuss. Okay, question 9 in DPP 5. Okay, let us see this quite closely. A rocket is fired up from the Earth's surface. Earth's surface पे से rocket is fired up such that it creates an acceleration of 19.6. तो acceleration दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If after 5 seconds its engine is switched off, मतलब कि 5 सेकेंड तक ये एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा. तो लेट अस सपोज यहाँ पहुंचा ये 5 सेकेंड्स में, तो 5 सेकेंड्स के बाद एक्सीलरेशन क्या होंगे इस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंगे क्योंकि इसका इंजन ऑफ हो गया. What would be the maximum height of the rocket from Earth's surface? तो मैक्सिमम हाइट, लेट अस सपोज रॉकेट यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी 0 होता है, राइट. जहां पर 0 होगा वेलोसिटी, वहीं पर वो मैक्सिमम हाइट होगा. So we will find out the maximum height by calculating these two distances. Why these two distances? Because दोनों के केस में एक्सीलरेशन अलग है. तो पहला केस, when it is moving up with acceleration 19.6,
फॉर 5 सेकेंड्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? v इक्वल्स u प्लस AT 19.6 इंटू 5। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ से h1 और h2 निकालेंगे एंड वी विल जस्ट ऐड देम टू गेट द मैक्सिमम हाइट। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और एक्सीलरेशन है, तो हमें h1 मिल जाएगा। h1 क्या होगा? ut या फिर 2ah, 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पर, या बेटर विल बी कि चलो हम ये भी यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी। u क्या है 0, t क्या है 5, तो दैट इज कैंसल्ड आउट। हाफ ए टी स्क्वायर 19.6 इंटू टी स्क्वायर, राइट। एक h1 मिला। अब दूसरा क्या करेंगे, ये हाइट निकालेंगे। ये हाइट निकालने के लिए हमें क्या इक्वेशन यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या है 0, u क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या था, यहाँ पर वेलोसिटी 19.98 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो 98 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू h2। तो यहाँ से h2 हमें मिलेगा 98 स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.8। It is given in the question that after 5 seconds its engine is switched off। तो इंजन स्विच ऑफ हो गया, तो बॉडी, इन दैट बॉडी देर इज नो फोर्स, तो एक्सीलरेशन उस पर कोई एक्ट नहीं करेगा उसके इंजन के वजह से। तो कोई एक्सीलरेशन एक्ट नहीं करेगा, बट उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ही। बट 5 सेकेंड्स पे क्योंकि उसका इंजन काम कर रहा है, सो इट विल बी एबल टू एक्सीलरेट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नीड। ओके, सो यहाँ से h1 और h2 हमें मिला, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो व्हाट वी विल गेट, we'll get the maximum height। तो ऐड करते हैं। तो पहले 19.6 बाई 2 वी विल डू, h1 अगर निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 245, h2 अगर निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 245 मिला। लेट अस फाइंड h1। अच्छा, ये 9 कहाँ है, ये तो 2 है ना, ये 2। तो h2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 98 इंटू 98 बाय 9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेगा 490। दोनों का ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। ये हो जाएगा 735 मीटर्स। ओके, is this understood to all? Any doubts other than this? Okay, other than this, any other doubt?
No doubt, then this DPP discussion is done. किसी और को कोई डाउट है? Okay, no doubts, then it's fine. So right, starting from DPP1, DPP1 में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट्स है? कोई DPP में नहीं है डाउट? Just look over if you all have any question. Okay, no doubts. So from DPP1, let us discuss few questions. So number 7, what all answers you have got? Quickly we will just go through these questions ताकि जो कर चुके हैं they can match up their answers. Athlete completes, will not find the answer, we'll just see the complete way. Athlete completes one round of circular track of diameter this much in 40 seconds. What will be the displacement at the end of 2 minutes 40 seconds? तो जिस उसका डायमीटर कितना है 100, ये रेडियस है 100, राइट? डायमीटर इज 200. अब ये कंप्लीट सर्कल कितना देर में कवर करता है? 40 सेकेंड्स. इट सेज व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स. 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स, इसमें ये कितने सेकेंड्स हो गए? 120 प्लस 40, तो ये हो गया 160 सेकेंड्स. 160 सेकेंड्स, देखो 40 सेकेंड में वही आ गया, 80 सेकेंड में वही, 120 सेकेंड में वही, तो 160 में वही, तो डिस्प्लेसमेंट 0. नंबर 8, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द अबव इक्वेशन? 4 बार ये कवर कर रहा है, राइट? एक बार कवर करने में 40 सेकेंड लग रहा है, 4 बार कवर करने में 160 सेकेंड्स लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 4 इंटू 2πr, राइट? एक बार जब कवर किया तो डिस्टेंस हुआ 2πr, 4 बार कवर किया तो वो हो गया 4 इंटू 2πr. नंबर 9, इट सेज
car travels 1/4 of a circle with radius r. The ratio of its distance to displacement. ये जो सर्कल है इसमें कार ट्रेवल कर रहा है एंड 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, राइट, एंड दिस इज द रेडियस. तो इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर जा रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, राइट, डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा कर्व्ड पाथ, क्योंकि जा तो इस कर्व्ड पाथ के अलोंग ही है ना. तो डिस्टेंस देखें तो इस केस में डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 2πr का 1/4. डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो हो जाएगा r√2. तो दोनों का रेशियो देखो, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या मिल जाएगा, आर आर कट गया, ये बन गया π/2√2, है ना. 1 ये हो जाएगा π/2√2 या फिर 1/π/2√2. ये बी बी मिला सभी को, π/2√2:1, राइट, क्योंकि 2 को हम कह सकते हैं 2:1. 10th, train travels a distance of this much and returns with a speed of this much. Calculate the average speed. एवरेज स्पीड के लिए क्या करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम. तो अगर ट्रेन ट्रेवल कर रहा है ए से बी 30 km/h एंड रिटर्न हो रहा है 50 km/h, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम. So let us say that distance between them is s. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2s, राइट, क्योंकि ये जा भी रहा है और आ भी रहा है. टोटल टाइम कितना होगा, जाने वक्त टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो s/30. आने वक्त होगा रिटर्न स्पीड, और डिस्टेंस को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड होगा 2/1/30 प्लस 1/50, राइट. दिस वे वी विल कैलकुलेट, we'll get the answer. We have a lot of questions, we have to go this much fast, इसलिए मैंने आप सबसे सभी से क्वेश्चंस पहले ही पूछ लिया कि कुछ डाउट्स हैं तो उनको हम स्लोली कवर करेंगे, else we will go on with all these questions. Okay, so this is just comparison for all of them who have done this DPP. Okay, ये सब अगर तुम लोग कर चुके हो तो then it's good. So let us see some questions from the DPP only. कोई एक रैंडम कुछ क्वेश्चंस करते हैं which are good. We'll just see how to do them because we barely have some time left to end the class. By the time it ends, let us do this. Okay. So all will do this and let me know which option is correct. Option A, option C भी दिखा मुझे. Student goes from his house to his friend's house with speed v1. कितना स्पीड में गया, v1. Finding the door closed, he returns with speed v2. अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, जस्ट द सेम वे वी डिड नाउ. तो डिस्टेंस मानेंगे s है, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जाने वक्त s, आने वक्त s, राइट. टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2s.
टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? वी विल फाइंड आउट द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम H1 टू H2। तो H1 टू H2 जाने के लिए क्या-क्या है गिवन है हमारे पास? डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। और जब ये वापस रिटर्न हो रहा है तो क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट? तो यहाँ से एस ये कट हो जाएंगे, बचेगा 2 बाय 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2। ये हो जाएगा 2V1 V2। यू कैन जस्ट सॉल्व दिस। ये हो जाएगा C। ओके, ये करेंगे सभी कोई? So you all can let me know what answer is correct, A, B, C or D. ये सभी कोई करेंगे? ओनली 27% ऑफ यू हैव वोटेड। सभी कोई करेंगे इसको? attempt it। नॉट इवन हाफ ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड। सभी कोई करेंगे? लेट मी सी।
Okay, so still 70% of you have only done. So you can see some of you are still wrong. तो ये देखो क्या है question. Most of you have selected C. So let us check whether C is right or not. Body starts from rest. 0 meter per second, that is indicating the body at rest, and moves with a uniform acceleration, right? Body is moving with uniform acceleration, the constant acceleration. Find the ratio of the distance covered in the nth second to the distance covered in n seconds. So distance covered in n second क्या होगा? Distance covered in n seconds minus distance covered in n minus 1 seconds, right? जैसे कि 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया और 9 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 10th सेकंड में डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया? यहाँ तक। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है 10th सेकंड वाला, ये कैसे निकलेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 माइनस 1, दैट इज 9 सेकंड। वही यूज किया। तो ये याद होगा, तो ये हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, राइट? वी डिस्कस्ड अबाउट दिस. So let us put the values. U 0 है तो a by 2 into 2n minus 1 divided by the distance covered in n seconds. ये क्या होगा? u into n, so that is 0, u तो 0 है, half into a into n square, half into a into n square. तो ये हाफ ए कट गया, बचा हमारा 2n minus 1 by n square, मतलब कि 2n by n square minus 1 by n square, जो कि हो जाएगा 2 by n minus 1 by n square. So C will be the correct one. So those of you who did C, they are all right. Okay. All right. So let's meet B. Let us check here. कहाँ पर B कहाँ पर दिया हुआ है? Yes, Shivansh, where is this B answer given? Okay, okay. Okay, all right, Shivansh. That's okay. But all of you have understood. That's right. Now, let's meet in the next class and let's move ahead with the contents. So those of you जिन्होंने DPP attempt नहीं किया, they should attempt it. और कुछ doubts हैं तो you can even ask me in the next class. Also in the next class we will finish up the modular discussion. जो questions बाकी हैं, including the advanced practice problems. Okay, so see you all in the next class. So do attempt, do complete all the questions even from the modules. Okay, all right. Bye everyone.